Hello students, in the previous lecture we discussed questions of ratio and today we are going to start a new topic, that is proportion. So students, at first we will understand what is proportion and after that we will solve some questions based on proportion. So students, हम लोग proportion को कुछ example के through समझेंगे. Raju went to the market to purchase tomatoes. राजू मार्केट गया टोमेटो परचेज करने के लिए. देन वन शॉपकीपर टेल्स हिम दैट द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज इज ₹40 for 5 kg and another shopkeeper tells that the cost of 6 kg tomato is ₹42. It means ₹42 for 6 kg. Now what should Raju do? Should he purchase tomatoes from the first shopkeeper, that is the shopkeeper who was giving in ₹40 5 kg tomato, or he should take tomatoes from the second shopkeeper who is giving tomatoes for ₹42 6 kg tomatoes? Students, will the comparison by taking the difference help him decide? No. If no, then why not? Let us take another example. Bhavika has 28 marbles and Vinny has 180 flowers. They want to share these among themselves. Bhavika is having marbles and Vinny is having flowers and they want to share themselves. Bhavika gave 14 marbles to Vinny and Vinny gave 90 to Bhavika. But Vinny was not satisfied. She felt that she had given more to Bhavika than the marbles given by Bhavika to her. What do you think? Is Vinny correct? To solve this problem, both went to Vinny's mother, Pooja. Then Pooja explained that out of 28 marbles, Bhavika gave 14 marbles to Vinny. उसके पास 28 मार्बल्स थे और 28 मार्बल्स में से उसने 14 मार्बल्स विनी को दे दिए. इट मीन्स जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 1/2. एंड व्हेन वी विल फाइंड द रेशियो फॉर विनी, तो विनी के पास कितना फ्लावर्स था 180 और उसमें से उसने कितना दिया 90. तो इसके लिए रेशियो क्या निकल के आएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा 1/2. तो इसके लिए रेशियो निकल के आया 1:2 और इसके लिए भी आ गया 1:2. सिंस हियर बोथ द रेशियोज आर सेम, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर. लेट अस टेक द नेक्स्ट सिचुएशन दैट two friends Asma and Pankhuri went to market to purchase hair clips. There are two friends, one is Asma and other is Pankhuri, and they both went to market and purchased hair clips. They purchased 20 hair clips for ₹30. ₹30 में उसने कितने हेयर क्लिप्स लिए 20 हेयर क्लिप्स लिए. Then Asma given ₹12 and Pankhuri gave ₹18. After that they came back home. Asma asked Pankhuri to give 10 hair clips to her. Asma ने पंखुरी से कहा कि हमें वो 10 हेयर क्लिप्स दे दे. अगर ये 10 दे देगी तो इसके पास कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना. Asma wants that Pankhuri will give her 10 hair clips, but Pankhuri said that since I have given more money, उसने ₹18 दिया है, so I should get more clips. You should get 8 hair clips and I should get 12. अब यहाँ पे पंखुरी कह रही है that I have given more money, so you should get 8 hair clips and I should get 12 hair clips. Can you tell who is correct, Asma or Pankhuri, and why? So students, how we will find solution of this problem? We will find the ratio here and after that we will compare. At first we will find ratio of money
given by Asma to the money given by पंखुरी। दैट इज आसमा ने कितना दिया था मनी? 12 रुपीज दिया था और पंखुरी ने कितना दिया था? 18 रुपीज दिया है। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जो इनके मनी के बीच रेशियो आ गया दैट इज 2:3। नाउ अकॉर्डिंग टू आसमा सजेशन, आसमा ने सजेस्ट किया था दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स फॉर आसमा टू नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स फॉर पंखुरी दैट इज 10:10। तो कितना आ जाएगा? 1:1। आसमा चाहती कि उसे 10 मिले और पंखुरी को भी 10 मिले, बट पंखुरी ने ज्यादा पैसा लगाया है तो पंखुरी चाहती है कि उसको ज्यादा हेयर क्लिप्स मिलनी चाहिए। तो पंखुरी ने कैसे डिवाइड किया है? 8:12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/12, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो उन दोनों के बीच में रेशियो क्या मिलेगा? 2:3। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी नोटिस दैट अकॉर्डिंग टू आसमास डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो ऑफ हेयर क्लिप्स एंड द रेशियो ऑफ मनी गिवन बाय देम इज नॉट द सेम। मनी का रेशियो यहाँ 2:3 है और आसमा के अकॉर्डिंग हेयर क्लिप्स का रेशियो 1:1 है। तो आसमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉट फेयर, बट अकॉर्डिंग टू द पंखुरीज डिस्ट्रीब्यूशन द 2 रेशियोज आर इक्वल। जितना उनके बीच मनी का रेशियो है उतना ही उनके बीच हेयर क्लिप्स का भी रेशियो है। हेंस वी कैन से दैट पंखुरीज डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। ओके, let us take another examples of proportion. The first example is Raj purchased 3 pens for ₹15. Anu purchased 10 pens. This is purchased by Raj and this is purchased by Anu. Anu purchased 10 pens for ₹50. Then whose pens are more expensive? Pen of Raj or pen of Anu? Can you tell me? Think about it. Now, how we will find the solution of this problem? Ratio of number of pens purchased by Raj to the number of pens purchased by Anu. That is 3:10. And ratio of their cost that is 15:50. When we will solve it then it will be 5 3 जा 15 and 5 10 जा 50। तो कितना आ जाएगा? 3:10। यहाँ पे देखिए जो रेशियो उनकी पेन परचेज करने के बीच है सेम रेशियो उनके मनी का भी है। हियर बोथ द रेशियोज आर इक्वल, देयरफॉर द पेन्स वर परचेज्ड फॉर द सेम प्राइस बाय बोथ Raj and Anu. So students, what we can say that if 2 ratios are equal, then we can say that they are in proportion and use the symbol. This is the symbol of proportion, are equal to equate the 2 ratios. हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? अगर हमें प्रोपोर्शन में राइट करना हुआ तो फर्स्ट थिंग इज दैट 3 10 15 and 50. The 4 quantities are in proportion and we can write that 3:10 is in proportion with 15:50. ये किसका सिंबल है? प्रोपोर्शन का। And we will read it that 3:10 as 15:20. Or we can write it 3:10 is equal to 15:50. तो यहाँ पे देखिए जो दोनों के बीच में रेशियो है वो इक्वल है, दैट्स वाई दे आर इन प्रोपोर्शन। एंड स्टूडेंट्स, इफ 2 ratios are not equal, then we can say that they are not in proportion.
In a statement of proportion, the four quantities involved when taken in order are known as respective terms. First and fourth terms are known as extreme term. यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, इसको क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम टर्म. यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म क्या है बेटा? 3 and 50, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म. एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर नोन एज मिडल टर्म्स. जो यहाँ पे मिडल टर्म्स होंगे दे आर सेकेंड दैट इज 10 एंड थर्ड दैट इज 15. Let us take an example where two ratios are not equal and they are not in proportion. Cost of 2 kg of apple is rupees 180. Cost of 2 kg of apple is rupees 180 and a 5 kg watermelon costs rupees 45. आपको चेक करना है कि दे आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट इन प्रोपोर्शन. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एट फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट of apples to the weight of watermelon. It will be equal to weight of apples is 2 kg and weight of watermelon is 5. तो इन दोनों के वेट का जो रेशियो मिल जाएगा दैट विल बी 2:5. अब हम फाइंड करेंगे मनी के बीच का रेशियो. अगर उनके वेट का रेशियो और मनी का रेशियो दोनों इक्वल आ जाएगा तो वो प्रोपोर्शन में होगा. अगर डिफरेंट आएगा तो दे विल बी नॉट इन प्रोपोर्शन. नाउ वी विल फाइंड रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल टू द कॉस्ट ऑफ द watermelon. That is equal to cost of apple is 180 rupees and cost of watermelon is 45. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 180 अपन 45 राइट कर लेते हैं. पहले हम 5 से डिवाइड कर दें. 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, यहाँ से 3 जाएगा तो ये 30 हो जाएगा. 5 6 जा 30, 3 से फिर डिवाइड हो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से 3 से डिवाइड हो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. तो आ गया 4:1. अब यहाँ पे देख सकते हो जो उनके वेट का रेशियो है दैट इज 2:5 एंड जो उसके कॉस्ट का रेशियो है दैट इज 4:1 एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल. हियर 2 ratios 2:5 and 180 and 45 are not equal. 2:5 is not equal to 180:45. Therefore, the four quantities 2, 5, 180 and 45 are not in proportion. ये proportion में नहीं है. So students, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. The first example is, are the ratios 25 gram, 30 gram and 40 kilogram is to 48 kilogram in proportion? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? We will write the solution. पहले हम इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. इफ बोथ द रेशियोज आर इक्वल देन दे विल बी इन प्रोपोर्शन. सो वी विल राइट इट एज 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम इक्वल टू 25/30. 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. तो आ गया 5:6. The next ratio is 40 kilogram is to 48 kilogram. तो हो जाएगा 40/48. सिंप्लीफाई करेंगे 8 से. 8 5 जा 40, 8 6 जा 48. तो कितना आ गया 5:6. Here both the ratios are equal. So 25:30 is equal to 40:48. Therefore, the ratios 25 gram
is to 30 gram and 40 kilogram is to 48 kilogram are in proportion. That is 25 is to 30 as 40 is to 48. और बेटा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यू फाइंड द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म. अगर आपसे मिडल टर्म की बात करेगा वो, तो आप राइट करोगे मिडल टर्म्स हमारे 30 और 40 हैं, तो हो जाएगा 30 एंड 40. और एक्सट्रीम टर्म मतलब बाहर वाले टर्म्स, तो एक्सट्रीम टर्म्स हमारी कौन से हो जाएंगे 25 एंड 48. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर 30, 40, 45 एंड 60 इन प्रोपोर्शन. आपको चेक करके बताना क्या ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है. वी विल राइट द सॉल्यूशन एंड वी विल फाइंड द रेशियो. तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे. रेशियो ऑफ 30 to 40 दैट इज इक्वल टू 30/40. 0 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 3:4. फिर फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ 45 to 60, तो हो जाएगा 45/60. 15 से डिवाइड करिए, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, तो हो जाएगा 3:4. सिंस 30 is to 40 is equal to 45 is to 60. Therefore 30, 40, 45 and 60 are in proportion. See the next question. Do the ratios 15 centimeter to 2 meter and 10 second to 3 minutes form a proportion. आपको चेक करना है कि ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे. एट फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर. तो क्या हो जाएगा 15 is to, देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो हम 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 2 मीटर 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 200 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हो जाएगा 200. हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 15 एंड 200 को सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और आ जाएगा 3:40. द सेकेंड रेशियो दैट इज रेशियो ऑफ 10 सेकेंड टू 3 मिनट. देखिए यहाँ पे हम फिर से मिनट को किस में चेंज कर लेते हैं, सेकेंड में. तो दोनों क्वांटिटी सेकेंड में चेंज हो जाएंगी. नाउ वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. देन 3 मिनट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड दैट इज 180 सेकेंड. अब 3 मिनट 180 सेकेंड में चेंज हो चुका है, दैट इज 10/180. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/18 और रेशियो मिल गया हमको 1:18. सिंस 3:40 is not equal to 1:1:18. Therefore, the given ratios do not form a proportion. So students, we know that practice makes us perfect. Let us try to solve these questions. And after solving the question, you can check your answers from here. Thank you for watching and see you in the next video.